आत्मा और परमात्मा का मिलाप होना क्यों जरूरी है? बेटा, अपने असल से बिछड़ के क्या कभी भी हमें सुख मिल सकता है? नहीं मिल एक सकता। बूंद अगर समुंदर से बिछड़ जाती है, छोटी सी बूंद का क्या वजूद है, उसकी क्या हस्ती है? वही बूंद जब समुंदर में मिल जाती है तो समुंदर की तो अपनी हस्ती है ना। सो इसलिए ये जो हमारे अंदर तड़फ है वो अपने असल की है। जब अपने घर को छोड़ के जाते हैं, जो खुशी अपने घर में हो सकती है वो कहीं बाहर तो नहीं हो सकती ना। बाबा जी, हमेशा वर्तमान क्षण में कैसे रह सकते हैं जिससे कार्य कुशलता अच्छी बनी रहे? बेटे, उसके रजा में रहने की कोशिश करें। अब इंसान जब से सृष्टि में आया है अपने मन के पीछे लग के ये करता है सब कुछ, इसीलिए तो मोहताज होकर बैठे हैं। अगर मालिक के हुक्म में रहेंगे फिर हमारे क्या कर्म है? फिर बाबा तो। जी, मन हमेशा पास्ट में चला जाता है। जी। मन हमेशा पास्ट में चला जाता है। नहीं, मन अपनी आदत से मजबूर है, जो आदतें डाली हैं वैसे ही जाएगा। साथ में मालिक ने विवेक भी तो दी है ना। सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, बजाय इसके कि मन के अधीन होके मन के पीछे लग के सब कुछ करते जाएं। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਣੀਆਂ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਓ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। Babaji, I am a very emotional person. I feel so. And I believe in the circle of, in the way nature has been made, that a bigger animal eats a smaller animal, an even bigger animal will hunt the medium animal. But when it comes to humanity, I mean humans, I feel very bad because एक इंसान जानवर को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। एंड मुझे लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है इस बारे में। इंसान इंसान को सही तरीके से ट्रीट नहीं करता तो जानवरों की तो बात ही और है बेटा। दिस opportunity has been given to us to learn what it means to be human. The moment you learn it, what it means to be human, the next step to godliness will happen automatically. First, we have to learn what it means to be human. There's nothing that we can do about it when we, even if we feel so bad. नहीं बेटा, हम you can't go around trying to change the world. Let's try and change ourselves. That we can do. We are too busy trying to teach others and change the world. That is not possible. So if we change ourselves, at least as one better person, one person who is trying to do the right thing. Babaji, I want to make you proud and my parents proud, and I will work hard. Please just never leave my side. Beta, he never leaves us. He can't leave us. It's like parents can never leave the children. Children leave the parents, beta. They get distracted. They have their own priorities and slowly, slowly they leave the parents. Awesome. ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? बेटा, मालिक ने ना सृष्टि बना के सृष्टि का एक कुदरत का कानून बनाता, और वो कुदरत का कानून कहता है कि ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ बीज बोओगे ਉਹੋ ਜੀ ਫਸਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲਿਕ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟਾ?
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਾਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ फिर गाल ही खत्म होगी बेटा। बाबा जी, मैं किसी पे भी भरोसा कर लेती हूँ और फिर अटैच हो जाती हूँ। फिर वो अगर मेरे साथ गलत भी करते हैं तब भी मैं उन्हें छोड़ नहीं पाती। कि बेटा इंसान अगर अपनी, देखो मालिक ने विवेक की ताकत दी है, तो विवेक का क्या मतलब है बेटा कि हम अपना अच्छा और बुरा तो पहचान पाए ना। तो अगर हर वक्त कोई ना कोई हमें आके ऐसे तंग करेगा या हमारा फायदा उठाएगा, तो उसका तो फिर प्रभाव पड़ेगा ना मन के ऊपर, तो फिर हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। सो ध्यान से कदम उठाने चाहिए। बाबा जी, मैं दिखावा बहुत करती हूँ, उस वजह से मैं कभी कभी मुश्किलों में भी पड़ जाती हूँ। तो मुझे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या करना? बेटा दुनिया में अगर हर एक इंसान हमारे साथ दिखावे की का रिश्ता रखे या दिखावे के साथ चले तो वो निभ नहीं पाएंगे। तो वैसे ही हमारे ऊपर भी निर्भर है कि बेटा हम सच का सहारा लेके चलें, बजाय इसके कि दिखावे में पड़ के हम अपने आप अपने ऊपर और बोझ डाल के बैठ जाएं। बेटा बाबा जी, मैं दोस्तों के साथ शराबी कबाबी पढ़ चुका हूँ, आप मुझे बख्श दें। बेटा इसके साथ फायदा क्या होता है? एक तरफ तो हम खुद मुख्तियार होना चाहते हैं, हम हर एक चीज का खुद हल ढूंढना चाहते हैं, और दूसरी तरफ शराब के साथ, नशे के साथ हम इन चीजों के मोहताज हो जाते हैं। तो बेटा उसका बोझ तो फिर हमें उठाना पड़ेगा ना। सो आप कोशिश करके बेटा इन चीजों को छोड़ दें। और पैसे का नुकसान अलग होता है, सेहत का नुकसान अलग होता है। या तो उसका कोई फायदा होता हो तो मैं फिर भी मान सकता हूं, मगर जब किसी चीज का फायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, उस रास्ते पे हमने क्यों चलना है? बाबा जी, हमारे पेरेंट्स उनके बचपन में सत्संग में सेवा करते थे, पर जब हम छोटे थे पापा जी बोलते हैं कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, वो आपकी पहली सेवा है। अब बाबा जी पढ़ाई करते हैं तो वो तो बढ़ती जाती है, ख़त्म ही नहीं होती। अब पेरेंट्स बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, वो भी सेवा पर नहीं आ पाते। बाबा जी मुझे कब सेवा का मौका मिलेगा? नहीं बेटा देखो, पहले अपने पैरों के ऊपर खड़े हों, उसके बाद जितनी मर्जी सेवा करनी चाहे आप कर सकते हैं। हर एक चीज़ का बेटा एक वक़्त होता है। ये जो वक़्त है कि आप पढ़ाई करके अपने पैरों के ऊपर खड़े हों बेटा, और पैरों के ऊपर खड़े होंगे तो फिर जब मर्जी आप कर सकती हैं। हाँ जी, सेवा का मौका देना बाबा जी। बाबा जी मेरी बेनती यह है कि जैसे नामदान के बाद कोई देवी देवताओं की पूजा या ध्यान करते हैं तो वह अपने संचकरण के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम ना हर एक चीज़ का हम सोचते हैं ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए सब कुछ। देखो जब तक किसी को अंदर से सहारा नहीं मिल रहा तो जिस चीज़ का आदी है वहीं से सहारा लेगा ना। तो ये सो कहना कि जी ऐसे करेगा ऐसे करेगा, भजन सिमरन करें आप। बाकी ठीक है, ये जिन रीति रिवाजों में हम पले हैं वो एकदम तो हमारे से नहीं निकलेंगे ना। सो इसलिए भजन सिमरन जरूर करो, उसके आगे आपने कुछ करना है, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। बाबा जी आपका बच्चा बहुत ही कष्टमय जीवन से गुजर रहा है। मेरी पत्नी जो है वो माँ नहीं बन सकती, तो इसके लिए मैंने मेडिकल साइंस में सरोगेसी का सहारा लिया।
और जैसे ही मैंने अपने परिवार को बताया तो मेरा परिवार मेरे से मतलब फ्रंट हो गया और ये कहने लगा कि आप जो है इतना कॉस्टली इसको कर रहे हैं, आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं है। तो बाबा जी मेरा आप मार्गदर्शन करें। नहीं बेटा, अगर कल को हमें कुछ हो जाता है बेटा, जी तो क्या हम बेटी को कहेंगे तू छोड़ के दूसरी शादी कर ले? जी सो नहीं बेटा, अगर मालिक ने आपको इकट्ठा किया है तो निभाना चाहिए बेटा। ये भी मालिक की देन है। अगर वो चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो जितना मर्जी कोशिश कर ले नहीं होगा। मगर सिर्फ इसी कारण अपनी पत्नी को छोड़ देना ये सही नहीं है। जी आपको अगर शादी हुई है तो हमें रिश्ता निभाना चाहिए। जी बाबा जी, किसी की बेटी भी तो, किसी की पत्नी भी तो किसी की बेटी ही होती है, तो माँ बाप को भी या परिवार को या समाज को भी ये देखना चाहिए कि उसका सहयोग ही करें। आप साथ निभाएंगे बेटा, उसको अपने आप वो ताकत मिलेगी और सहारा मिलेगा। बाबा जी मुझे इतनी धैर्य प्रदान करना कि मैं इसको कर सकूं या सहन नहीं कर बेटा, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप अपनी जिम्मेवारी निभाएं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने पत्नी के साथ खड़े होकर निभाएं। ठीक है बाबा जी। बस। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? बेटा पहला तो ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ बेटा, और फिर अपने अंदर वो बर्दाश्त ਦਾ ਮਾਦਾ पैदा करना है कि ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ बेटा। सो इस करके बेटा ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होगी। ये नहीं कि अज मैं नाम ले लिया या अज मैं सत्संग सुन लिया तो मैं एकदम ही अपने जीवन ਨੂੰ बदल लूंगा बेटा। सो पहला सोच बदलनी है, अपने मन विच वो विचार दृढ़ करने हैं, तां ही निभा पावांगे बेटा। बाबा जी मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कभी गाइडेड मेडिटेशन या कुछ बेनती चलाकर मैं 5-10 मिनट फोकस करूँ। तो क्या ये तरीका सही है मुझे आपके पास लाने का, या मुझे कुछ और करना चाहिए जब तक मुझे नामदान नहीं मिला? बेटा पहले हमें मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि आंखें मीच के नहीं हमने किसी चीज़ में कदम रखना। तो पहले सब किताबें पढ़ के सत्संग सुने कि जब आप अगला कदम उठाएं तो उसको निभा सकें। हम कई बारी जल्दबाजी करते हैं और जब निभाने की बात आती है फिर हमसे होता नहीं है। सो इसलिए अपना पहले विश्वास बना के फिर अगला कदम उठाएं। तो बाबा जी अगर हमें लगता है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो हमें नामदान लेना चाहिए या नहीं? बेटा जीवन से किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे? हर एक चीज़ में, चाहे शादी है, चाहे माँ बाप की सेवा है, चाहे नौकरी है, जब तक इंसान जिम्मेवारी नहीं उठाएगा तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? बाकी क्या जिम्मेवारियां नहीं है? तो फिर बेटा अगर हमने बाकी जिम्मेवारियां निभानी है तो ये भी एक वैसे ही जिम्मेवारी है बेटा। Babaji, synthesis gives symphony to anything and it makes it a great piece of work or art, be it painting or music or poetry, whatever. What is that which gives grace and makes our life symphonious and harmonious? Music of the spheres. Sure. You see, what is Shabad? Shabad is music of the spheres. You see, so when we listen to outside music, normally when we are tense or we want to relax, we put on some light music to help ourselves, right? So here we are talking about that divine sound, which is more melodious and sweet than anything else we've heard. Milton has said, all calm of mind and passion spent. In my life, all passions have been spent. They have been withdrawn. They have gone away. They have subdued, mellowed. And I am just feeling the grace of yours. Well, you use the right word, subdued. But the mind is such a powerful entity, you don't know at what time it can awaken those passions again.
So that is why we have to be on our guard all the time. We have to be very cautious because mind can trick us at any stage and pull us at any stage. That's why we need that inner support. Yeah. You see? Now, if we have that support, that becomes our strength, our confidence. And until we don't go beyond mind and Maya, mind can pull us back anytime. My heartfelt gratitude, my master. बाबा जी, जिस प्रकार पढ़ाई लिखाई जरूरी है वैसे ही भजन सिमरन क्यों जरूरी है और मेरा मन भजन सिमरन में हमेशा लगा रहे। बेटा देखो, मालिक ने अगर सृष्टि में भेजा है तो किसी खास वजह के लिए भेजा है। मालिक ने इंसान का जामा बख्शा है, पेड़ पौधे बना सकता था, जानवर पक्षी बना सकता था। तो पहले तो हमें पहचानने की ज़रूरत है कि इंसान का जामे की बख्शिश हुई है तो कौन सी खास वजह है, और जब तक उस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे तो हमें यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। सो भजन सिमरन का बेटा मकसद है कि हम मालिक का शुक्र करें, क्योंकि जो भी हमें हासिल है मालिक की दया से हासिल है। उसका शुक्र करेंगे, उसकी कदर करेंगे, वो और देगा। बेकदरे होंगे तो फिर बेटा वहीं के वहीं रह जाएंगे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਧਾ स्वामी जी। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਸਵਾਰਥ ਕਮਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? बेटा ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਕਤ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਗੇ? बेटा ठीक है, मगर ये भी याद रखो कि बाप ने ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗੀਏ बेटा। बाबा जी, कोई बोलते राधा स्वामी बड़े हैं, कोई कहता जय गुरुदेव बड़े, कोई कहता कोई पंत बड़ा है। नहीं बेटा, कोई नहीं बड़ा, मालिक बड़ा है सबसे। हमें कभी भी इस तुलना में नहीं पड़ना चाहिए। बेटा वो रास्ता अपनाओ जो आपको ठीक लगे। ये कहना कि कोई एक सोच ज़्यादा बड़ी है, दूसरी सोच ऐसी नहीं है बेटा। सभी एक जैसे हैं, मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं। जो आपको ठीक लगता है आप उनके जुड़ के भक्ति उस एक की करनी। हमने किसी इंसान की नहीं करनी और ना ही कभी भी इस बहस में पड़ना है बेटा। हम तो सबसे नीचे हैं। पास रहना चाहिए, एक ने पूजा पाठ करना चाहिए, एक ने। ये बेटा ये देखो, ये सभ्यता का हिस्सा है बेटा। जो रूहानियत है वो अंदर से मिलेगी। अब दुनिया में रहना है, दुनिया में सभी के साथ आना जाना है, तो जो सभ्यता में आप करते हैं मेरी तरफ से कोई उसकी मनाही नहीं है, मगर बस इतना जरूर याद रखें कि जो रूहानियत है, परमार्थ है, वो अंदर से मिलेगी। सो दुनिया के लिए आप करते हैं बड़ी खुशी से करें। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? बेटा देखो, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। बेटा माड़ी तो जेड़ा माड़ा करूगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਿਓ, ਨਾਮਦਨ ਬਖਸ਼। मेरे दोस्त कई बार मुझे कहते हैं कि तुम राधा स्वामी पंथ से जुड़े हो, तो श्री कृष्ण, राम, महादेव ये सब तुम्हारे लिए कौन है? बेटा महापुरुष है, हम तो सभी की कदर करते हैं बेटा, मगर है कोई मजहब जिसने 2 या 3 या 4 मालकों की बात की है? ये सृष्टि पे आए थे, हमें रास्ता दिखाने के लिए आए थे बेटा, मालिक के साथ जोड़ने के लिए आए थे। सो इसलिए हम तो सभी की कदर करते हैं बेटा। जी